Assalamu alaikum. The topic of this lecture is full wave rectification. My name is Dr. Amir Shahzad and we have made this lecture from the textbook of Electronic Devices and Circuit Theory by Robert L. Boylston. The DC level obtained for sinusoidal input can be improved 100% in comparison to half wave rectification using a process called full wave rectification. Now, the DC level we obtained for half-wave rectification will be improved two times or will be improved 100% by using full-wave rectification. We can have different circuits for full-wave rectification. The first one is bridge network, means you can use bridge network to have this full-wave rectifier circuit. Now in this circuit shown in figure 2.53, we have shown an input signal which is sinusoidal and have peak value of Vm and a bridge network to be used as full wave rectifier. Now for positive half cycle we will have different analysis, and for the negative half cycle we will also analyze this circuit and find the output across this resistor R. Please note that V naught is mentioned like this, where uh, polarity of V naught is shown from plus minus, that is from right to left. So for the positive half cycle, that is T is equal to 0 to T by 2, that is we have positive half cycle here. So this circuit is shown here. When you apply positive half cycle at the input, in this circuit D2 and D3 will be conducting and D1 and D4 will be off. Let's see how this happens. If you consider positive voltage at this point, and negative voltage at this point, so it means D1 D2 is actually forward bias. Similarly, D3 will be forward bias and D1 will be reverse bias and D4 will also be reverse bias. So the direction of current will be like this. Current will flow in this direction and in same direction where polarity of V naught is mentioned, and current will flow through D3 and will be collected at negative terminal of this battery. So let us see separately the both half cycle, that is positive and negative half cycles. अब इस केस में आप देखें कि हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को यहाँ पे मेंशन किया है, हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में मेंशन किया कि ये वाला डायोड ऑन है और ये वाला, दैट इज D2 एंड D3 बोथ आर ऑन। तो इसमें करंट की डायरेक्शन, फिर हमारे पास करंट का पाथ इस तरह बनता है और ये यहाँ पे आके नेगेटिव टर्मिनल पे कलेक्ट होता है। तो अब अगर आप थ्रू KVL इससे V नॉट की वैल्यू फाइंड करें या V नॉट की रिलेशन फाइंड करें, V नॉट विल बी इक्वल टू VI, as we are considering both these diodes as ideal diode, और हमने इन दोनों को शॉर्ट सर्किट इक्विवेलेंट नेटवर्क से रिप्लेस किया है। शॉर्ट सर्किट पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती और आपके पास ये V नॉट उसी तरह अपेयर हो रही है जैसे शुरू में स्टार्ट में हमने यहाँ पे मेंशन की थी। V नॉट विल बी मेंशन एज ड्रॉप, V नॉट ड्रॉप एट दिस R रेजिस्टर। और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई V नॉट की KVL इक्वल टू VI, that is whatever the value of V naught,
that will be whatever the value of Vi will be, that will be the value of V naught here. और इसका पीक वैल्यू अगर Vm है तो आउटपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू भी Vm होगी, but this is for ideal diode only. Now for the negative half cycle, उस केस में हमारे पास जो टाइम पीरियड है हाफ ऑफ द टाइम पीरियड दैट इज T/2 टू T, इस केस में हमारे पास ये नेगेटिव हाफ साइकिल है और इनपुट पोलैरिटीज अब इस तरह ये मेंशन की गई हैं, नेगेटिव वोल्टेज इस पॉइंट पे और पॉजिटिव इधर। केस में हमारे पास ये वाला डायोड विच इज D1 और फिर हमारे पास D4, ये दोनों ऑन है और D2 और D3 रिवर्स बायस हैं और ये दोनों ऑफ हैं, क्योंकि अगर नेगेटिव पोटेंशियल इधर है तो यहाँ पे डायोड की ओरिएंटेशन इस तरह थी। That means you are connecting negative terminal to the anode of this diode and positive terminal to the cathode of this diode, which is D2. Similarly D3 के लिए भी इसी तरह ये रिवर्स बायस हो रहा है। अब एक चीज आप नोट करें कि करंट की डायरेक्शन किस तरह है, उसी तरह है जिस तरह हमने यहाँ पे R पे V नॉट को ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है। Yes, it is like that because current will flow now from the positive terminal through this diode D4 and voltage will be dropped at this R और फिर यहाँ से current is negative terminal of the battery पे collect होगा। तो करंट की डायरेक्शन अब इस रेजिस्टर में से उसी तरह है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फिर ये हम इसको V नॉट से V नॉट ड्रॉप से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसलिए पॉजिटिव हाफ वेव के लिए भी हमारे पास जो आउटपुट आई थी वो V नॉट पॉजिटिव आई थी और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी V नॉट पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन सेम है एज was for the positive half cycle of the input। तो इस तरह आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आपके पास पॉजिटिव एरिया या ये जो हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव ही आ रही है। तो इसमें फिगर 2.57 में इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म दोनों को साइड बाय साइड शो किया गया है। इनपुट वेवफॉर्म आपके पास ये है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है और इसमें एक नेगेटिव हाफ साइकिल है, लेकिन ये ब्रिज नेटवर्क ने उसको चेंज करके हमारे पास दोनों जो हाफ साइकिल्स हैं वो अब पॉजिटिव साइड पे हैं, दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हैं। तो व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ दिस? द एडवांटेज ऑफ दिस विल बी दैट VDC विल बी इम्प्रूव्ड ट्वाइस। अगर आपको याद हो तो फॉर द केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, एक जो हाफ साइकिल थी उस केस में आउटपुट 0 आ रही थी और दूसरी हाफ साइकिल जो थी उस केस में आउटपुट जो हमारे पास एज वी हैड इनपुट वाज सेम आउटपुट हमारे पास आ रही थी जो कि VI के इक्वल थी। तो इस केस में हमारे पास जो VDC की रिलेशन थी वो थी 0.318 Vm। तो अब क्योंकि हमारे पास दोनों जो हाफ साइकिल्स हैं वो पॉजिटिव है, so it will be multiplied by 2. That is why we have VDC is equal to 0.636 Vm। तो VDC की वैल्यू 2 टाइम्स या 100% इम्प्रूव होगी। ये इस इक्वेशन में भी हमने मेंशन किया है कि VDC will be twice of that for half wave rectification, that is 2 into 0.318 Vm. So VDC for full wave rectifier will be 0.636 Vm. Now if we use silicon diode instead of ideal diode in the bridge network, what will be the change in output? तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में हम ये सर्किट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेट्स अज्यूम वी हैव सिमिलर साइनोसाइडल इनपुट एंड द पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारे पास D2 और D3 ऑन है।
D2 और D3 ऑन है या फॉरवर्ड बायस हैं, और D1 और D4 दोनों रिवर्स बायस हैं। लेकिन अब हमें पता है कि सिलिकॉन डायोड को हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस नहीं करते व्हेन इट इज कंडक्टिंग, वी रिप्लेस दिस विद वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट। सो इसी तरह 0.7 वोल्ट से हमने इस वाले डायोड को जो कि D2 है उसको रिप्लेस किया, और D3 को भी 0.7 वोल्ट के ड्रॉप से रिप्लेस किया। तो अब आप कैलकुलेट करें, अगर थ्रू KVL you can calculate the value of V naught. So KVL will give us the relation which is mentioned here, VI, that is rise, and then a drop here which is VK, and then we have a drop of V naught, and then again a drop of VK. So that will be equal to 0. So V naught will be equal to VI minus 2VK. तो आपके पास अब जो आउटपुट वोल्टेज की एक जेनेरिक इक्वेशन है वो VI माइनस 2VK है, और अगर VK को आप 0.7 पुट करें तो ऑफ कोर्स VI में से 1.4 वोल्ट माइनस होके वो आपके पास आउटपुट वोल्टेज अपीयर हो रही है। तो for this circuit we have this output voltage V naught mentioned here against the time period, ऑफसेट ड्यू टू VK अगेन यहाँ पे मेंशन है, ये हमारे पास ऑफसेट ड्यू टू VK है, ऑफसेट है ड्यू टू VK। इसको हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। जस्ट फॉर रिवीजन, आपको याद होगा कि जब तक हमारे पास वोल्टेज 0.7 वोल्ट डेवलप नहीं होती तो आपके पास ये डायोड ऑन नहीं होगा। Today, although you have positive terminal here and negative here for the positive half cycle, still the magnitude of input voltage should be greater than the VK of diode. लेकिन एक थोड़ी सी चेंज इसमें यह है कि इस पूरे करंट के पास में आपके पास दो सिलिकॉन डायोड है। तो ये दोनों डायोड अगर आप सीरीज में कंसिडर करें फॉर दिस पाथ ऑफ करंट, तो आपके पास जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप बन रही है वो 1.4 वोल्ट बन रही है। तो जब तक ये इनपुट वोल्टेज 1.4 वोल्ट अपीयर नहीं हो जाती यहाँ पे इनपुट साइड पे, दोनों डायोड्स ऑन नहीं होंगे। अगर एक भी डायोड इनमें से ऑफ है तो आपके पास सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो एटलीस्ट इनपुट शुड बी 1.4 वोल्ट टू टर्न दीज टू डायोड्स ऑन। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑफसेट हमने मेंशन किया है। सिमिलरली फॉलोइंग एज में भी जब 1.4 से लेस हो जाएगी वोल्टेज तो आपके पास डायोड अगेन ऑफ हो जाएगा। So the output for this circuit where we have used silicon diode will be V naught is equal to VI minus 2VK, and the peak value will be V naught की peak value VM है, that is peak value of V naught will be now VM minus 2VK. So the peak value will be V naught max will be VM minus 2VK. Now if you have the value of VM which is 4 greater than 2VK, then you can use the relation given here, VDC is equal to 0.636 VM. Since if you consider VM as 200 volt, let's say, and 2VK is 1.4 volt for the case of silicon diode, so 200 में से 1.4 अगर आप subtract भी करें, that will not give you much change in the VDC value if you calculate this with equation 2.10. So अगर VM की वैल्यू 2VK से 4 greater है, then you can use the equation 2.10 and ignore this knee voltage or 2VK term. Now for PIV calculation, what should be the PIV of these diode if you use them in bridge rectifier circuits? So PIV should be greater than equal to VM. How this you can calculate this?
अगर आप कंसिडर करें फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल D2 और D3 ऑन है, तो आपके पास करंट का पाथ ये बन रहा है। ये D2 और D3 ऑन है, लेकिन उसके साइड बाय साइड आप देखें D1 और D4 ऑफ है या रिवर्स बायस है। दिस मीन्स इन दोनों डायोड पे रिवर्स बायस पोटेंशियल अपीयर हो रही है D1 और D4 पे। तो अब रिवर्स बायस पोटेंशियल हो रही है, तो आपके पास ये आपने कैलकुलेट करना है कि इस पे कितनी रिवर्स बायस पोटेंशियल हो रही है, अपीयर हो रही है, क्या वो इसकी पीआईवी रेटिंग से ज़्यादा है या कम है। तो आप वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट का पाथ इस तरह है, तो इस लूप पे आप केवीएल अगर अप्लाई करें तो प्लस इस डायोड की ओरिएंटेशन इस तरह थी। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास ये जो डायोड यहाँ पे था वो इस तरह कनेक्टेड था। तो अब आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव इधर, तो इस रिवर्स बायस पोटेंशियल अपीयर हो रही है। लेकिन कितनी अपीयर हो रही है, अगर आप इस लूप पे केवीएल अप्लाई करें तो वीएम यहाँ पे अपीयर हो रही है। जितनी वोल्ट मीन वीएम यहाँ पे उसका पॉजिटिव टर्मिनल है और वीएम का नेगेटिव टर्मिनल इस साइड पे, दैट इज इस डायोड पे रिवर्स में वीएम अपीयर हो रही है। तो पीआईवी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वीएम। तो पीआईवी रेटिंग जो उसकी डायोड की होनी चाहिए वो वीएम से इक्वल या उससे ग्रेटर हो, ना कि उससे लेस हो। दिस मीन्स पीआईवी शुड बी PIV should be greater than, if we draw this in reverse bias configuration, तो अगर इस डायोड की PIV यहाँ पे है और VM आप इस पे let's say इधर अप्लाई कर रहे हैं, so this will be okay. But if VM is greater than PIV, then this diode is already in breakdown region, so device will burn and the circuit will not work. Now another type of full wave rectifier circuit is using center tap transformer. सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं और उसकी सेंटर से टैपिंग हुई होती है। तो द कॉइल रेशियो इज 1:2। दैट मीन्स अगर आपके पास यहाँ पे VI इनपुट है तो वो VI यहाँ पे इन दो पॉइंट्स पे डिवाइड हो जाएगी इक्वली। So VI will be from this point to this point. Similarly, VI will be also from this point to this point. जिस पोलैरिटी यहाँ पे है सेम पोलैरिटी इन दो पॉइंट्स पे भी होगी, इन दो सेक्शन पे एक्चुअली। और इसमें देखिए आप हमारे पास एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, एक रेजिस्टर है और दो डायोड्स हैं। तो हमने देखना है कि डायोड किस हाफ साइकिल में कंडक्टिंग है और किस हाफ साइकिल में डायोड जो है वो ऑफ सर्किट है, ऑफ है या ओपन सर्किट है। So for the time interval of 0 to t/2, that is 0 to t/2, we are considering positive half cycle. पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारे पास यहाँ पे इनपुट की पोलैरिटी इस तरह है, सेम हमारे पास यहाँ पे पोलैरिटी है। तो इस केस में आप देखें D1 should be on and D2 should be off. So for the positive half cycle, D1 diode is on and D2 diode is off because D1 is being forward biased and D2 is now reverse biased for the positive half cycle of the input. And for the negative half cycle of the input, आपके पास ये polarities यहाँ पे reverse bias हो जाती हैं और रिवर्स हो जाती हैं। तो आपके पास अब VI यहाँ पे इस तरह है और इस तरह appear होगी। This will make this diode forward bias, that is negative half cycle में D2 on है और D1 ऑफ होगा।
तो इसको अगर आप सेपरेटली यहाँ पे देखें तो for the positive half cycle, that is 0 to t by 2 time, we have polarities like this here, and वही जिस तरह सेम मैग्नीट्यूड है इनपुट का वो इस सेक्शन में भी है और इस सेक्शन में भी है। तो अब आपके पास ये जो D1 है ये ऑन है और D2 ऑफ है, तो करंट का पाथ सिर्फ हमारे पास ये बनता है। इस लूप में आप KVL अप्लाई करें तो यू कैन फाइंड द रिलेशन ऑफ V नॉट विच विल बी V नॉट विल बी इक्वल टू Vm और V नॉट विल बी इक्वल टू Vi। यहाँ पे Vi आपके पास अपेयर हो रही है, तो जो भी इनपुट पे वोल्टेज है वो यहाँ पे आउटपुट पे रेप्लिकेट हो जाएगी। इसी तरह नेगेटिव हाफ साइकिल में आपके पास देखें तो D2 ऑन है और D1 ऑफ है। तो अब नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन इस तरह है, और ये नोट करें कि करंट की डायरेक्शन इसमें भी राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा था रेजिस्टर में से, और इस पार्ट में भी नेगेटिव हाफ साइकिल राइट टू लेफ्ट ही करंट फ्लो हो रहा है। और हमने जिस तरह इसको मेंशन किया है प्लस माइनस दैट इज ड्रॉप, तो इसी वजह से हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी आउटपुट की। तो इस पे भी अगर आप KVL अप्लाई करें तो राइज एंड देन वी हैव अ ड्रॉप दैट इज V नॉट विल बी इक्वल टू Vi। तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है और हमने इसको इस तरह पॉजिटिव साइड पे मेंशन किया है। नाउ वी हैव दिस फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। अगर आप इसको कंप्लीटली ड्रॉ करें तो आपके पास ये फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है। मीन्स यू हैव टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, और जो इसकी VDC की रिलेशन है वो सिमिलर टू ब्रिज सर्किट है, और आपके पास DC लेवल 2 टाइम्स इम्प्रूव हुआ एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। Now what about PIV रेटिंग, दैट इज इस डायोड पे हमारे पास कितनी रिवर्स में वोल्टेज अपेयर हो रही है, वी हैव टू कैलकुलेट। तो वी हैव टू चूज द डायोड पे आपके पास उसकी PIV रेटिंग यहाँ पे जो इस पे वोल्टेज अपेयर हो रही है उससे ज़्यादा होनी चाहिए in order to make the circuit work। तो अब आप देखें कि लेट्स से फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल D1 रिवर्स बायस था और D2 फॉरवर्ड बायस था। इस केस में देखें D1 पे कितनी रिवर्स में वोल्टेज अपेयर हो रही है, वी वांट टू कैलकुलेट दिस। तो इनपुट पे हमारे पास मैक्सिमम जो वोल्टेज थी वो इसमें देखें मैक्सिमम वोल्टेज इस केस में Vm है, ये Vm है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम को कंसिडर करें राइज ऑफ Vm, then we have a rise of Vm and then drop of PIV। So PIV is equal to V secondary, Vm जो मैक्सिमम वैल्यू है, एंड VR जो कि इस रजिस्टर पे वोल्टेज अपेयर हो रही है, और दोनों की जो पीक वैल्यू है वो Vm है। तो इस तरह हमारे पास रिवर्स में इस डायोड पे 2Vm वोल्टेज अपेयर हो रही है। दैट मीन ये डायोड 2Vm से रिवर्स बायस हो रहा है। So we have to calculate its PIV, that should be greater than 2Vm. So you can calculate or you can find the value of PIV of this diode, और फिर आप ये Vm की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उस डायोड की PIV रेटिंग जो आप डेटा शीट से देख रहे हैं वो इसकी 2Vm से ग्रेटर होनी चाहिए, 2Vm ऑफ इनपुट सिग्नल। अदरवाइज ये डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करेगा, and of course the device will be damaged. Now we have this example at 2.17. It says that determine the output waveform of the network of figure 2.64 and calculate the output DC level and the required PIV of each diode। हमने इसकी आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है और यहाँ पे VDC की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर PIV जो कि इन डायोड की है वो हमने फाइंड करनी है कि इसकी PIV कितनी होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये इनपुट वेवफॉर्म गिवन है विच है Vm वैल्यू ऑफ 10 वोल्ट, और सर्किट गिवन है। इसको अगर आप नोट करें तो यहाँ पे ये ब्रिज नेटवर्क नहीं है
के दो डायोड है और यहाँ पे दो ये रेजिस्टर है। आउटपुट विल बी फुल वेव रेक्टिफाइड, लेकिन हम देखेंगे कि आउटपुट का मैग्नीट्यूड या पीक वैल्यू क्या होगी। So for the positive half cycle, input is like this: 0 to t by 2। पोलैरिटी इनपुट की साइड पे इस तरह है कि प्लस माइनस मीन्स यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे नेगेटिव है। तो आप देखें कि इस केस में अगर यहाँ पे प्लस है तो D1 या ये वाला डायोड अगर आप इसको 1 और 2 मेंशन कर दें तो D1 विल बी ऑन एंड D2 शुड बी ऑफ और रिवर्स बायस। तो D1 ऑन है तो ये आइडियल डायोड है, तो इसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया। करंट का फ्लो इस तरह है, ठीक है, और करंट का एक पाथ हमारे पास इस तरह भी है। तो इसको अगर आप रीड्रॉ करें तो आपके पास V0 इस वाले रजिस्टर पे, ये जो 2 किलो ओम का रजिस्टर है हमने मेंशन किया है, और इसके सीरीज में हमारे पास इसी ब्रांच में एक और 2K का विद सिमिलर रेजिस्टेंस वी हैव अनदर रजिस्टर इन दिस ब्रांच, और उसके ब्रांच के पैरेलल की जो ब्रांच है उसमें ये 2K रजिस्टर हमारे पास है। तो इस सर्किट को रीड्रॉ करें और यहाँ पे आप VI को मेंशन करें। यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ V0। अब हमें पता है कि VI इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो VI है, और आउटपुट क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज V0 वो सिर्फ इस रजिस्टर पे मेंशन की गई है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस सेम है, तो हाफ वोल्टेज इस पे ड्रॉप होगी और हाफ वोल्टेज इस पे ड्रॉप होगी, एक्चुअली हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज। so V0 maximum calculate किया इधर, V0 maximum will be half of the VI maximum, so that is half of the VI maximum is 10 volt, half of the 10 volt will be 5 volt। तो आपके पास ये सर्किट है, ये आउटपुट है जिसमें मैक्सिमम 5 वोल्ट गिवन है। जनरली अगर आप इसकी जेनेरिक इक्वेशन लिखना चाहें तो VI क्या होगी, हाफ ऑफ V0 क्या होगी, हाफ ऑफ VI। तो जो भी वैल्यू ये है वो इसकी हाफ वैल्यू के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू के हैं, और यहाँ पे हमने थ्रू वोल्टेज डिवाइडर ये कंसिडर किया कि हाफ वोल्टेज इस रजिस्टर पे ड्रॉप होगी और हाफ इस पे। अब फॉर द केस ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, D2, अब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटीज इस तरह है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अब हमारे पास ये सर्किट है, यहाँ से ये D2 ऑन है, तो इधर से करंट का एक पाथ इस तरह है और एक पाथ इस तरह है। तो अगर आप इसको ये ब्रांच इस तरफ ड्रॉ कर दें नेगेटिव हाफ साइकिल में के केस में, अगेन मैं करंट को यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को प्लॉट कर रहा हूँ और इसको हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया ये, और दूसरा पाथ करंट का ये है, ठीक है। तो अब आपके पास ये देखें कि इस ब्रांच में ये जो V0 आपने मेंशन किया है, इस सर्किट को हम ड्रॉ कर लेते हैं और इन दोनों रजिस्टर के पैरेलल में ये 2 किलो ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे इस तरह हमारे पास VI हम अप्लाई कर रहे हैं। इधर इस वाले रजिस्टर पे आपने V0 को मेंशन किया हुआ है। ये तीनों रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 2 किलो ओम है। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे आपने प्लस माइनस इस तरह VI अप्लाई की है, so that means drop here and then we have drop here, so drop here, इधर drop है, so half of the voltage will be dropped at this resistor and half will be dropped at this resistor, and we are measuring V0 against this resistor which is shown on the upper side of this branch। तो आपके पास पीक वैल्यू अगेन नेगेटिव हाफ साइकिल में भी 10 है, तो इसकी पीक वैल्यू क्या होगी 5, लेकिन करंट की डायरेक्शन देखें वो सेम ही है,
जिस तरह हमने पोलैरिटी को यहाँ पे आउटपुट की पोलैरिटी को मेंशन किया हुआ है, इसीलिए आपके पास आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव ही आ रही है, लेकिन पीक वैल्यू या ओवरऑल जेनेरिक वैल्यू हाफ ऑफ द इनपुट वैल्यू है। अब इस केस में VDC की वैल्यू क्या होगी? VDC की रिलेशन वही है 0.636 इंटू VM। अब VM आउटपुट के केस में 5 वोल्ट है, तो ये आपके पास 3.18 वोल्ट आ गई। सो आउटपुट की वैल्यू आपके पास 3.18 वोल्ट है। Okay, this is end of this lecture in which we have discussed full wave rectification using two different networks. One was the bridge network, and the other one was using center tap transformer. I hope you understand this lecture. Thank you very much.